Hello everybody, welcome to Learning Physics by राकेश आहूजा। आज हम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सिखाएंगे। So going through some important questions based on magnetic effects of current. The topic that we are going to cover is moving coil galvanometer. Some questions based on charge moving in a magnetic field. फोर्सेस बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स। तो ये दो तीन टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, an electron is moving northwards with a velocity of 3 into 10 raised to power 7 meter per second in a uniform magnetic field of 10 Tesla directed eastwards. इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। एग्जाम में पेपर में दिया हो ना दिया हो, ये हमें साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हमें याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to power 7 meter per second in a magnetic field of 10 Tesla directed east towards east. Find the magnitude and direction of the force on the electron. Force acting on a charge moving in a magnetic field. Force acting on a charge moving in a magnetic field is given by F equal to QVB sin theta. Electron is moving towards north. Magnetic field is towards east. तो थीटा दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्रीज। फोर्स कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। चार्ज इज 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 into 10 raised to power 7। मैग्नेटिक फील्ड इज 10 टेस्ला और sin 90। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.8 into 10 raised to power minus 11 Newton. And the direction of force, ये ध्यान से करना है। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फोर फिंगर मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। आपके हिसाब से डायरेक्शंस ईस्ट इस तरफ होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ सामने लेते हैं, नॉर्थ, और चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड्स। फिर से वी हैव एन इलेक्ट्रॉन मूविंग नॉर्थवर्ड्स। ओके, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। Electron is moving towards north and magnetic field is directed towards east. Electron is moving northwards, magnetic field is directed east. Force acting will be downwards. The rule is for positive charge. If electron is there, it means the force will be acting in opposite direction. तो किधर होगी? Upwards. Direction एक बार फिर से, we have a charge moving towards north and towards north, and the field is directed towards east, so the force will be downwards on a positive charge. Since the charge is negative, as the charge being an electron, तो जो डाउनवर्ड फोर्स आ रही है इलेक्ट्रॉन पर किधर एक्ट होगी? अपवर्ड एक्ट होगी। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। क्वेश्चन is important from direction viewpoint. Formula the more simple set. We go through the next question. Yes, next question is, a 5 mega electron volt proton is falling vertically. Energy दे रखी है, kinetic energy 5 mega electron volt.
A 5 mega electron volt proton falling vertically downward through a region of magnetic field कितनी 1.5 Tesla acting horizontally from north to south. The field is acting from north to south. Find the magnitude and direction of the magnetic force exerted on the proton. Take mass of proton to be 1.610 is to power minus 27 kg. Yes. 5 mega electron volt proton falling vertically downwards. नीचे को आ रहा है in this magnetic field. So proton is moving downwards in a magnetic field directed from north to south. कितनी फोर्स लगेगी, किधर लगेगी, दोनों कैलकुलेट कर. Mind you, formula for force is QVB sin theta. और अगर ध्यान से देखें फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ एंड प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्रीज. क्यू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल, वी द स्पीड विद विच द प्रोटॉन इज मूविंग. स्पीड अगर पता लग जाए तो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. दे रखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जूल में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, मेगा था ये, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे. हाफ 1.6 10⁻⁻27 into v square, 5 into 10⁻⁶, 1.6 10⁻⁻19. सॉल्व किया जाए अगर इसको तो v की वैल्यू आ जाएगी 3.16 इंटू 10⁻3.16 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, 5 टू 10 आ गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे 3.16 आ जाएगा और ये बचेगा 10⁻14. दैट विल गिव अस द स्क्वायर रूट एज 10⁻7. वेरी सिंपल आइडिया. ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज प्लेस करेंगे तो चार्ज ऑन प्रोटॉन 10⁻, वेलोसिटी 3.16 10⁻7 और मैग्नेटिक फील्ड 1.5 साइन 90. सॉल्व किया जाए 7.58 10⁻12 न्यूटन. More emphasis on concept than calculations. कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ कैलकुलेशंस बहुत ट्रिकी है या जिनमें कुछ सीखा जा सकता है अलग से, आई विल एक्सप्लेन. अदरवाइज more emphasis on concepts. Direction of force now. Field is north to south. Field is north to south. Proton is moving downwards. तो फोर्स इधर एक्ट होगी, फोर्स इधर एक्ट होगी. फिर से फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सॉरी फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ और प्रोटॉन इज मूविंग डाउनवर्ड, तो फोर्स इधर लगेगी, दैट्स टुवर्ड्स ईस्ट. ये डायरेक्शंस हमें क्वेश्चन को यूज करके फाइंड करनी होती हैं. क्वेश्चन में जो डायरेक्शंस दी हैं, लाइक वी आर गिवन फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और प्रोटॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है, टुवर्ड्स साउथ. आई होप दिस इज क्लियर. That takes us to the next question.
charge moving in a magnetic field experiences force F equal to QVB sin theta. Direction of force given by Fleming's left hand rule. Rule is for positive charge. अगर चार्ज नेगेटिव हो तो जो भी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए रूल अप्लाई करके फाइंड करेंगे, फाइनली उस डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए फॉर अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. वी हैव अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a long straight wire AB carries a current of 4 ampere. डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, आप देखें. That's a 4 ampere current, or this is wire AB. There is a proton, a positive charge. It's moving with a speed of 4 into 10 raised to power 6 meter per second. It's traveling parallel to this wire at a distance of 0.2 meter. So we have a long straight wire AB. It carries a current of 4 ampere. A proton P travels at 4 into 10 raised to power 6 meter per second parallel to the wire 0.2 meter from it and in a direction opposite to the current as shown in the figure. It's moving this way. ठीक है, करंट इधर है और प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन. ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यस, फोर्स किधर होगी ये भी बताना है. तो सवाल ये है, व्हाई दिस प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस फोर्स. इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो. कितनी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड. और वैल्यूज प्लेस करें अगर 4 पाई 10 raised to power -7. Current is 4 ampere. 2 pi. R is how much? 0.2. तो ये इससे कैंसिल होगा, 2 आ गया. तो ये आ गया 4 into 10 raised to power -6 टेस्ला. ठीक है. इस स्ट्रेट कंडक्टर से जो करंट फ्लो है उसकी यहाँ पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. एंड चार्ज मूविंग इन द फील्ड experiences force F equal to QVB sin theta. Q the charge on proton 1.6 10 raised to power -19 coulomb, और V the speed, B is the magnetic field, theta that's important. ये अगर फील्ड है, करंट है सॉरी, तो फील्ड राइट हैंड पाम रूल से किधर होगी? इनवर्ड्स. और मोशन चार्ज की इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा? 90. दैट मीन्स F विल बी इक्वल टू Q, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10 raised to power -19, स्पीड 4 into 10 raised to power, मैग्नेटिक फील्ड 4 into 10 raised to power -6. ये और ये कैंसिल हो गए, ये 16 आ गया, ये 25.6 हो गया. दैट्स इक्वल टू 2.56 10 raised to power -18 न्यूटन. ठीक है. एंड फाइनली द डायरेक्शन. करंट इधर फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन्स इधर जा रहे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए. और जब अपोजिट हो तो फोर्स रिपल्सिव होती है अवे फ्रॉम द कंडक्टर. इस कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में, और अगर प्रोटॉन्स इधर जा रहे हैं तो यहाँ करंट इस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है, और जिधर पॉजिटिव चार्ज हो उसी डायरेक्शन में करंट अज्यूम करते हैं. दोनों अगर अपोजिट हो तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होती है. हमने डायरेक्शंस यूज करके फाइंड किया हुआ है. तो ये फोर्स इधर एक्ट होगी अवे फ्रॉम द कंडक्टर. आई होप दिस इज क्लियर.
So a current carrying conductor produces some magnetic field around it, and in that field a charge is in motion, a proton, a positive charge, and the charge moving in a magnetic field will experience force. Right. आगे बढ़ते हैं. Move on to the next question. Yes. The next question is, what's the magnitude of the magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degrees with the direction of uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Magnetic field of 0.15 Tesla making an angle of 30 degrees, current 8 ampere. क्वेश्चन एक बार फिर से, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है. ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला. ठीक है. F इक्वल टू बी आई L sin theta, force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, given by F equal to BIL sin theta. Now F by L will be BIE sin theta. What is F? Oh sorry, F by L to calculate करना. What is B? Magnetic field 0.15. Current is how much? 8 or sin 30. कितना आ गया? 1/2 आ गया, 4 हो गया, और 0.6 न्यूटन पर मीटर. 0.6 न्यूटन पर मीटर. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, एक क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे होंगे आपको. लग नहीं रहे हैं? क्वेश्चन इजी हैं. तो डू वी गेट सच इजी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन? आसान क्वेश्चंस करने के दो फायदे होते हैं. पहला, हमें कंसेप्ट्स और फॉर्मूले याद होने लगते हैं, एंड यूजिंग देम वी कैन सॉल्व इवन ट्रिकी क्वेश्चंस. शुरुआत अगर टफ हो तो वी स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता है. फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मीन्स एवरेज, हम कह सकते हैं कि इन्हीं से हम सीखते हैं हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अब ये एक बार याद हो जाए, कंसेप्ट्स भी फॉर्मूले भी, तो फिर हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं. इजी क्वेश्चंस करने का दूसरा फायदा, कोई भी एग्जाम हो उसमें सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते. थोड़े से क्वेश्चंस टफ होते हैं, बाकी सब इजी ही होते हैं, एवरेज क्वेश्चंस. तो हम उन्हें छोड़े नहीं, उन्हें भी किया करें. अगला क्वेश्चन करते हैं. I hope this is clear. Moving on to next question number 5. 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Solenoid होता है ना, फील्ड ऐसे है, and that's the axis of the solenoid. इस solenoid के अंदर एक वायर रख दी परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर. द करंट कैरिड बाय सोलेनॉइड इज 10 एम्पीयर. A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be, field दे रखी है, we don't have to calculate, is given to be 0.27 Tesla. What's the magnetic force on the wire? Okay, this current is through the wire, not through the solenoid. This is through the wire. Solenoid के अंदर ये magnetic field है. A wire carrying this much of current and this length is placed perpendicular to this field. How much is the force that acts on it?
Force acting is given by PIL sin theta. Theta 90 होगा यहाँ पर. How much is B? 0.27. Current is 10 ampere and this is 3 by 100, 3 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करेंगे और sin 90 तो F इक्वल टू मल्टीप्लाई करें, ये इससे कैंसिल हो गया 0.081 न्यूटन. 0.081 न्यूटन. ठीक है. We can also write it as 8.1 into, you can also write it as 8.1 into 10 is to power minus 2 Newton. Anyway, you can write the answer. ठीक है. आगे बढ़े. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is a straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass 60 gram is suspended by two vertical wires at its ends. अब जरा क्वेश्चन ध्यान से समझें. Question is a straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter is suspended by mass भी दिया हुआ है कितना 60 ग्राम is suspended by two vertical wires at its ends. A current of 5 ampere is set up in the rod. Current of 5 ampere is set up in the rod through these wires. What magnetic field should be set up by the what magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in the wires is zero? Yes. Question बहुत important है, ध्यान से समझा जाए. We have a rod having certain mass 60 gram and the rod is suspended with the help of these two wires. Definitely the rod has got certain weight mg और इस weight की वजह से इन wires में tension होगी. wires में tension होगी. हमने क्या किया, करंट फ्लो किया 5 एम्पियर. अब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, a current carrying conductor in a magnetic field experiences force. We should apply the field in such a way that the force acts in the upward direction and balances the weight. This is important. ध्यान दो, हम कुछ डायरेक्शन अपनी तरफ से ले रहे हैं. करंट हमने इस डायरेक्शन में पास किया, फील्ड इनवर्ड लगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अप्लाई कर. These cross signs representing an inward magnetic field. तो inward magnetic field अप्लाई कर दी, करंट इधर फ्लो है तो कंडक्टर पर फोर्स एक्ट होगी इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन. प्रॉपर्टी, a current carrying conductor in a magnetic field experiences force given by Fleming's left hand rule and the formula for that force BI sin थीटा. थीटा 90 हो गया बिकॉज करंट इधर है और फील्ड इनवर्स, तो ये आ गया F इक्वल टू BIL. क्यों? क्योंकि थीटा 90. नाउ दिस फोर्स BIL must balance the weight and if it can balance the weight तो फिर टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. means BIL must be equal to mg. So B will be equal to mg by IL. m the mass 60 gram, kg में कन्वर्ट करेंगे
G 9.8 लेंगे, करंट 5 एम्पियर और लेंथ थी 0.45 मीटर. That gives us the value of magnetic field 0.26 Tesla. फिर से एक बार, a current carrying conductor in a magnetic field experiences force whose direction is given by Fleming's left hand rule. तो अगर इस रॉड को सस्पेंड करते हैं यूजिंग दीज वायर्स, तो इसके वेट की वजह से वायर्स में टेंशन होगी. टेंशन मीन्स फोर्स एक्ट. अब अगर हम इस टेंशन को हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? We have to somehow balance this weight, and for that we pass current through the wire, through this rod, and place it in a magnetic field directed inwards, so that the force acts in the upward direction. And if this force can balance the weight, तो टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. ठीक है जी. I hope this is clear. Very important concept. Now the question is, what will be what will be the total tension in the wires if the direction of current is reversed, keeping the magnetic field same as before? करंट की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दें तो टोटल टेंशन कितनी हो जाएगी? जो फोर्स ऊपर एक्ट हो रही थी अब वो नीचे एक्ट होने लग जाएगी. तो total tension in the wires will be equal to the force plus mg. Force upward direction में act हो रही है. If you change the direction of the current, तो वो जो force ऊपर act हो रही थी अब किधर act होने लग जाएगी? Downward act होने लग जाएगी. We can use Fleming's left hand rule once again. Field is directed inwards, current is direction में, तो force किधर act होगी? Downward. तो ये फोर्स भी अब नीचे को होगी. टोटल टेंशन विल बी फोर्स प्लस एम जी, और फोर्स बी आई एल के इक्वल थी और बी आई एल एम जी के इक्वल था, तो ये आ गया 2mg. तो T विल बी इक्वल टू 2 इंटू मास कितना था 60 ग्राम और G कितना था 9.8. The value of T comes out to be 1.176 Newton. That's the total tension in the wires. Important concept. आगे बढ़ते हैं. That takes us to the next question. Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The next question. It says a uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction parallel to the axis along east to west. A cylindrical region. Imagine कर रहे हैं 3 डायमेंशन में क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत आती है डायरेक्शंस और ये सब समझने में. दिस इज द एक्सिस और इस एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसका रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर. वंस अगेन इट सेज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction parallel to the axis of the cylinder along east to west direction. Magnetic field is along east to west. तो अगर ये सिलेंडर का we have a
लूप, ये सिलेंडर का अगर क्रॉस सेक्शन हो, वी हैव अ सिलेंडर एंड से दिस इज द क्रॉस सेक्शन, तो इसमें फील्ड इस डायरेक्शन में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द फील्ड इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. A wire carrying a current of 7 ampere is in the north to south direction passes through this region. What is the magnitude and direction of the force on the wire if the wire intersects the axis? Yes. ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझा जाए. फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार. A uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter, its direction parallel to the axis along east to west. The magnetic field is along east to west. A wire carrying a current of 7 ampere, wire carrying a current of 7 ampere from north to south in the direction north to south passes through this region. Okay, फिर तो इधर है और नॉर्थ टू साउथ तो इधर होगा नॉर्थ टू साउथ. अब अगर ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है और इसमें से वायर ऐसे क्रॉस कर रही है, तो वायर की कितनी लेंथ इस सिलेंडर में होगी, वायर की कितनी लेंथ इस सिलेंडर में होगी. ऑब्वियसली इसमें से अगर क्रॉस कर रही है तो कितनी लेंथ इस सिलेंडर में होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू द डायमीटर. एक वायर अगर इसमें से पास करें ऐसे बीचों बीच अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऐसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो कितनी लेंथ इस सिलेंडर से पास होगी, कितनी पास होगी 20 सेंटीमीटर. Now the question is, what's the magnitude and direction of the force on the wire if the wire intersects the axis? Wire crosses this axis. The force is given by B/L sin theta. B कितना है 1.5, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. करंट कितना था, करंट इज 7 एम्पियर और साइन 90, ये आ गया 30 और 0.3 इंटू 7 दैट्स इक्वल टू 2.1. ठीक है, ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वे वट सिलेंड्रिकल रीजन, सिलेंड्रिकल, और फील्ड इसी डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट. अब इस सिलेंड्रिकल रीजन से अगर एक वायर पास करें नॉर्थ टू साउथ, तो इस रीजन से कितनी लेंथ वायर की क्रॉस करेगी, तो सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल, और सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा 20 सेंटीमीटर एज इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. नाउ द डायरेक्शन, द फील्ड इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड द करंट इज फ्रॉम, करंट इन द वायर इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ गिवन इन द क्वेश्चन. तो फिर फोर्स किधर लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो द फोर्स एक्टिंग विल बी डाउनवर्ड्स. ठीक है जी, नोट किया जाए. समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फील्ड दिस वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड a wire north south in the direction north south passes through this cylinder intersecting the axis. Obviously दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. और उस वायर की लेंथ जो इस सिलेंडर को क्रॉस करेगी ऑब्वियसली डायमीटर के जितनी, और वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर. फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर BIL sin थीटा, थीटा इज 90, तो ये वैल्यू आ गई. ठीक है जी. नाउ द सेकेंड, the wire is turned from north south to northeast या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. जो वायर ऐसे थी नॉर्थ साउथ, उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया
तो ये क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। ये तो है 20 सेंटीमीटर और नॉर्थ ईस्ट में वायर हो गई, ये एंगल 45 हो गया क्योंकि ये डायरेक्शन थी ना। अब ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट थी, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। अब कितनी वायर की लेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड में होगी निकाल सकते हैं। L/20 विल बी 20/L विल बी इक्वल टू, ये से 0.2 ले लें मीटर में, 0.2/L विल बी इक्वल टू sin 45, तो L विल बी इक्वल टू 0.2/sin 45, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, force given by BIL sin 45, क्योंकि अब एंगल कितना होगा 45 डिग्री। B कितना था मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला और करंट 7 एम्पियर, लेंथ कितनी है 0.2/sin 45 into sin 45। सॉल्व करने इसको, द वैल्यू स्टिल कम्स आउट टू बी सेम 2.1 और फोर्स ऑफ कोर्स अभी भी किधर लगेगी, डाउनवर्ड्स। And the most important part, the third part, 3D में जब कोई भी डायग्राम्स होते हैं और हम 2D में प्रेजेंट करते हैं, obviously they are difficult to understand. The third part of the question is, the wire in the north south is lowered from the axis by a distance of 6 centimeter. That's the diameter. ये 20 था, इस वायर को नीचे ले आए 6 सेंटीमीटर, ये कितना है 10, ज्वाइन कर दें, ये भी कितना होगा 10। वायर अब इतनी मैग्नेटिक फील्ड में होगी, इसको एक्स मान लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करो इसको, ये कितना आ जाएगा 8। तो पूरी लेंथ कितनी होगी 16 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही है 1.5 टेस्ला, करंट अभी भी कितना फ्लो है 7, एंगल ऑफ कोर्स 90 हो गया, तो F इक्वल टू BIL sin थीटा और F इक्वल टू 1.57, लेंथ 16 सेंटीमीटर, BIL sin 90 and the value comes out to be 1.68 Newton. I hope this is clear. Two long and parallel straight wires A and B, two long parallel straight wires A and B and carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction. So the question is, two long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on 10 centimeter section of wire, 10 centimeter section of wire A. कितनी फोर्स एक्ट होगी हमें कैलकुलेट करना। Yes, force per unit length between the wires is given by mu naught I1 I2 by 2 pi r. तो F will be equal to mu naught I1 I2 by 2 pi r into L. So that's equal to 4 pi 10 raised to power minus 7, I1 8, I2 5, length
10 centimeter, 10 into 10 is to power minus 2 by 2 by r कितना है? R is 4 centimeter. So this value comes out to be, this value comes out to be 2 into 10 is to power minus 5. That's the answer. आगे बढ़े. यस. Next question. Two wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry current of 300 ampere. कहीं भी देखो दो वायर्स होती हैं. अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और यहाँ एक मोटर लगी हुई हो, तो we can show this motor just like any resistance. तो करंट ऐसे फ्लो होगा. ठीक है ना. टू वायर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड टू अ मोटर. मोटर को एक वायर एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दीज वायर्स कैरी अ करंट ऑफ 300 एम्पियर ईच. ऑब्वियसली जो करंट ऐसे जाएगा वो ऐसे भी जाएगा, तो दोनों में करंट सेम होगा. क्वेश्चन में अगर ध्यान दें, टू वायर्स विच connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere. What's the force per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? इन दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर. करंट कितना है दोनों में? 300 एम्पीयर. फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r. 4 पाई 10 is to power minus 7 करंट 300 into 300 बाई 2 पाई into r. r कितना है? 1.5 into 10 is to power minus 2. ये कितना आ गया? 2 आ जाएगा. सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यू कम्स अप टू बी 1.2 न्यूटन पर मीटर. यस, ठीक है. 3 3 is 9 to the 18. 18 divided by 1.5 that's 12. डेसिमल लगाएंगे तो ये बता न्यूटन पर मीटर. and the force will be repulsive. Why repulsive? Because the current in both the wires is in opposite direction. Current through both the wires is in opposite direction. ठीक है जी. नेक्स्ट, next question. It says a rectangular loop of sides 25 centimeter and 10 centimeter carrying current of 15 ampere is placed with its longer side parallel to long straight conductor 2 centimeter apart carrying a current of 25 ampere. We have a straight conductor and we have a rectangular loop. Sides 25 centimeter and 10 centimeter. A rectangular loop with sides 25 centimeter and 10 centimeter and carrying a current of 15 ampere is placed with its longer side parallel to a long straight conductor 2 centimeter apart
carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? What is the net force on the loop? Question is very very important, बहुत ध्यान से समझने वाला है. करंट्स की डायरेक्शंस नहीं दी है, हम अपनी तरफ से कुछ भी मार्क कर सकते हैं. आंसर जो आएगा वो सेम आएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप विल रिमेन सेम. करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, डायरेक्शंस में जरूर चेंजेस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, मेंशन नहीं है कि डायरेक्शंस कैसे लेनी है. वी कैन कंसिडर एनी डायरेक्शन फ्रॉम आवर साइड. तो जरा ध्यान दिया जाए. We have a rectangular loop with sides 25 centimeter and 10 centimeter, carrying a current of 15 ampere, and it's placed with its longer side parallel to a straight conductor that carries a current of 25 ampere. The distance between them is 2 centimeter. इस पर नेट फोर्स क्या होगी ये बताना है. डेफिनेटली करंट पूरे लूप में होगा. उल्टा भी ले सकते हैं, इसको डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, एनीवे करते हैं. क्योंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो दे आर गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. इस पर फोर्स किधर होगी? इस तरफ. क्योंकि ये दोनों में करंट सेम है तो अट्रैक्ट होता है. और इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स रिपल्सिव होगी. ठीक है. यस. ये जो F1 है, दिस इज म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r into L. F by L होता है तो L इधर ले. F1 is the force acting on this conductor because of this. तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये R1 हो गया. डिस्टेंस, इसकी लेंथ L 25 सेंटीमीटर. सेम वे F2 कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi R2 into L. ये भी ठीक है. तो फिर नेट फोर्स विल बी F1 minus F2. तो म्यू नॉट I1 I2 L by 2 pi कॉमन ले लें, 1 by R1 minus 1 by R2. Now this will be 4 pi into 10 is to power minus 7. The two currents 25 और ये कितना था? 15. Length 25 centimeter by 2 pi, और ये डिस्टेंसेस मीटर सेंटीमीटर में दिए हैं, इन्हें भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे. और एक डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर, 1/2 माइनस ये डिस्टेंस कितना हो गया? 12. तो 1/12. सॉल्व किया जाए द वैल्यू कम्स आउट टू बी 7.82 into 10 is to power 7.82. सॉल्व करना है, इसमें और कुछ नहीं है. क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. I hope this is clear. एक बार फिर से we have a straight conductor, इसके parallel एक rectangular conductor with its longer side parallel to the straight conductor, separated by a distance of 2 centimeter. इसकी साइड्स हमें दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ, और दोनों में करंट फ्लो किया गया. इसकी वजह से इस पर कितनी फोर्स एक्ट होगी ये कैलकुलेट करना. फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कंडक्टर कितनी होगी वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है. और करंट की डायरेक्शंस कोई भी मार्क कर लें. इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में तो ये अट्रैक्ट होगा, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रिपेल होगा.
दोनों फोर्सेस निकाल ली, दोनों को माइनस कर दिया, दैट गिव्स अस द नेट फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इस पर और इस पर फोर्स एक्ट नहीं होगी? इन पर भी फोर्स एक्ट होगी, इन पर भी फोर्स एक्ट होगी, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होगी। इस पर ऊपर की तरफ होगी और इस पर नीचे की तरफ। कैसे, ये समझा जाए। इस करंट की फील्ड किधर होगी? इनवर्ड्स। और इनवर्ड फील्ड में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड। इनवर्ड फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और करंट इधर फ्लो हो रहा है तो फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड। और अगर करंट उधर फ्लो हो रहा हो तो फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी। इससे नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा? 0। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस जिनसे हमने कुछ फॉर्मूले याद किए, कुछ कंसेप्ट। दिस क्वेश्चन वाज इम्पोर्टेंट। एक हमने वो टेंशन वाला क्वेश्चन किया, वो भी इम्पोर्टेंट। वी गो थ्रू सम मोर क्वेश्चंस in our next session. Thank you. Thanks a lot.